سامعین محترم، پیش خدمت ہے اشفاق احمد کی کتاب ایک محبت 100 افسانے سے پہلی کہانی، جس کا عنوان ہے توبہ۔ میرے اس طرح ایک دم سگریٹ چھوڑنے پر سبھی حیران ہیں، اور جب کوئی مجھ سے اس کی وجہ پوچھتا ہے تو آپ ہی کہیے میں کیا جواب دوں۔ یہی نہ کہ مضر چیز تھی، چھوڑ دی۔ جب میں نے شارع عام میں سگریٹ پینے شروع کر دیے تو امی نے 10 کے 2 نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ کر کہا، لے آج سے توبہ کر کہ آئندہ سگریٹ پیوں تو اپنی امی کا خون پیوں۔ میں نے نوٹ جیب میں ڈال لیے، کان کھجایا، ناک صاف کی، گلے کی خراش دور کر کے امی کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور توبہ کر لی۔ انہوں نے فرط محبت سے میری پیشانی چوم لی۔ وہ میری صحت کے متعلق ہر وقت پریشان رہتی تھیں۔ دوسرے دن جب وقت دیکھنے کے لیے انہوں نے میرے کوٹ کی غلط جیب میں ہاتھ ڈال دیا، جہاں بجائے فیور لیوبا کے ولز کی ایک ڈبیا پڑی تھی، تو میں نے کروٹ بدل کر دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ جسم پر پسینے کی ہلکی سی یورش ہوئی اور 10 کے 2 نوٹ اور ایک بوسہ میرے ماتھے پر اینٹی فلوجسٹین کے پلسٹر کی طرح چمٹ گیا۔ امی نے کہا 9:45 اور ابا جی لفافے پر پتہ لکھ کر بولے، لے بھئی تیرے ساتھ ایک سودا کرتے ہیں اعجاز۔ کیا؟ میں نے پھر کروٹ بدلی۔ تو سگریٹ پینا چھوڑ اور اس کے عوض جو انعام چاہتا ہے ہم سے مانگ لے، مگر ہو ہماری بساط میں۔ امی کا چہرہ دم بھر کے لیے متغیر ہوا۔ پھر انہوں نے روئی کی ایک چھوٹی سی پھریری پین کلر سے تر کر کے داڑھ میں رکھ لی اور کروشیے سے دبانے لگیں۔ وہ ناآموز جواری تھیں۔ کل ہی انہوں نے 20 روپے کا داؤ ابا سے پوچھے بغیر لگایا تھا اور ہار گئی تھیں۔ سی کرتے ہوئے وہ اپنی ہار بھی پھریری کے ساتھ کروشیے کی مدد سے دباتی رہیں۔ مجھے منظور ہے، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے سگریٹ سلگایا اور دیا سلائی کی بجھی ہوئی تیلی کان میں پھیر کر بولے، تو بتا پھر۔ سائیکل لے دیجئے، مجھے اس کی سخت ضرورت تھی۔ مگر تیرے پاس ہے جو؟ وہ حیران رہ گئے، جیسے میں اسے گروی رکھ آیا ہوں۔ وہ کوئی سائیکل ہے؟ میں نے اپنے چہرے پر طنز اور حقارت کی ساری علامات پیدا کر کے کہا۔ چلتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پھٹتے ہوئے بموں کو لکڑی سے پیٹ رہا ہو۔ تو ابا جان مسکرا دیے۔ کہہ جو دیا تو؟ پھر ابا جان مسکرائے۔ کہہ جو دیا نہیں لے دیجئے۔ اب میں اس سائیکل پر جاتا ہوا اچھا لگتا ہوں کیا؟ BS سے اچھا ماڈل ہے، خوبصورت کا خوبصورت اور مضبوط کا مضبوط۔ میں تو وہی لوں گا، باقی سب بکواس ہے نا ابا جی؟ وہ خود بھی BS کو پسند کرتے تھے۔ میں نے تیر چھوڑا، جا ڈیل کر نیچی۔ مگر آج کل ان دنوں، وہ سوچتے ہوئے بولے۔ میں در پہ ہو گیا۔ گھنٹہ بھر کی بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ اچھا مل جائے گی، مگر اس شرط پر کہ پھر کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ ابا جان کو اپنے سگریٹوں سے کتنا پیار تھا، ان کو میری صحت سے زیادہ اپنے سگریٹوں کی فکر تھی، جو آئے دن ان کے ڈبے سے اغوا کر لیے جاتے تھے۔ جب تک سائیکل گھر نہ پہنچ گئی، ہم نے سگریٹوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اسی ایک خیال میں مگن دل کو تسلی دیا کیے نشہ کی طلب ہوتی تو ٹھنڈے پانی کے 2-4 گلاس حلق میں ڈیل لیتے، اس سے تسکین بھی ہوتی اور تکلیف بھی۔ اور جس دن بندوق مارکا سائیکل ہمارے ہاتھ میں آئی تو سڑک پر چکر لگاتے اس کی ٹرائی لیتے، پانڈے بھیا کی دکان پر پہنچ کر چپکے سے کونڈر کی ایک ڈبیا کوٹ کی جیب میں ڈال لی۔ دل کی رفتار میں غیر معمولی اضافہ ہوا، مگر دل کا کیا ہے، دھڑکتا ہی رہتا ہے، آہستہ نہ صحیح ذرا تیز صحیح۔ نوحہ غم اور نغمہ شادی دونوں ہنگامہ پرور چیزیں ہیں، اور ہم اس وقت نغمہ شادی والے ہنگامے کو اپنائے ہوئے تھے۔ دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی جگہ ایک ہی وقت ہو رہی تھی۔ گمسان کا رن تھا، خوب غل ہوا، چخ مچا، ہر کوئی نفسا نفسی اور آپا دھاپی کا شکار ہو گیا۔ سامنے کے میدان میں برات کے لیے شامیانہ نصب کیا گیا، اینٹیں جوڑ کر غسل خانے اور موتریاں تیار کی گئیں۔ رونق بڑھانے کے لیے رنگ برنگی جھنڈیاں، نیلے پیلے بلب لگا رکھے تھے۔ ہر دروازے پر سنہرے حروفوں والا ویلکم کا بورڈ بادل نخواستہ لٹک رہا تھا، اور مرے پر سدرے یہ کہ اس شور میں ایک بگڑا ہوا لاؤڈ سپیکر بھی اسی طرح کھپا دیا گیا تھا جیسے دیوالی کے پٹاخوں میں کسی نے بہت ہی بھونکنے والے کتے کو پٹا ڈال کر باندھ دیا ہو۔ مجھے جس کمرے میں جگہ ملی وہ ایک جعفری تھی۔ گھر کے بیرونی دروازے کے آخری کونے میں وہاں 2 چارپائیاں بچھی تھیں۔ ایک کی اور گنجائش تھی، کیونکہ اس خالی جگہ میں اس قسم کی متعدد چیزیں پڑی تھیں جو اٹھائی نہ جا سکتی تھیں یا جن کے سمیٹنے پر کوئی دھیان ہی نہ دیتا تھا۔ مثلاً پرانی چارپائیوں کا بان، ٹوٹے ہوئے ڈمبل،
उखड़ा हुआ चरखा, बिगड़ा हुआ स्टूल लैंप, बर्फ़ जमाने वाली मशीन के चंद हिस्से, ऐसी ही चीज़ें ना तो घर में रखी जा सकती हैं और ना ही बाहर फेंक सकते हैं। जाफरी के अलावा उनके लिए कोई मौजूद जगह नहीं हो सकती। जाफरी ना घर होती है ना बाहर। और कुछ इन्हीं चीज़ों का सा हाल हमारा था। हमारे साथ एक थानेदार साहब भी थे। ये हमारे साथ बारात में आए थे या लड़की वालों के कोई रिश्तेदार थे, मुझे इसका इल्म नहीं। बहरहाल उनका बिस्तर दूसरी चारपाई पर लगा दिया गया, मगर इस बिस्तर को उनका शर्फ हासिल ना हो सका। खोंटी पर वर्दी लटकाकर ऐसे गायब हुए कि उनकी आमद का यकीन ही ना होता था। यूँ मालूम होता था जैसे खोंटी पर वर्दी कहीं से आकर चमगादड़ की तरह खुद ब खुद लटक गई हो। साथ वाले कमरे की 2 खिड़कियाँ जाफरी में खुलती थीं, जहाँ दोनों दुल्हनें मांझे बैठी थीं। कभी कभार हल्की सी खुसर फुसर या दबी दबी हंसी की आवाज़ इस कमरे से बुलंद होती और फिर खामोशी छा जाती। मेरी पायंती की तरफ मेज़ पर एक ग्रामोफोन और एक एम्पलीफायर पड़ा था, जहाँ से 2 तारें बाहर बांस से बंधे हुए भोंपू को जाती थीं, और सरहाने की तरफ एक तपाई थी। उस पर एक फटा हुआ रसाला और ऊन का 2-3 गज लंबा उलझा हुआ तागा पड़ा था। तपाई पर स्याही जमे हुए दूध और खड़े हुए पॉलिश के निशान थे। दीवार पर 3 साल पुराना असगर अली मोहम्मद अली के 100 बरस के राज वाला कैलेंडर लटक रहा था। चारपाई के नीचे अनगिनत पुराने बूट, स्लीपर, सैंडल और पुठवारी जूते पड़े थे। फर्श पर गर्द के अलावा सुर्ख सुर्ख बजरी के छोटे छोटे जर्रात, जो जूतों के साथ अंदर चले आते थे, गलीचे की तरह बिछे हुए थे। ये जगह अच्छा खासा कमरा ही तो थी। फिर यहाँ बैठकर हर कोई इधर उधर की हर चीज़ का जायज़ा अच्छी तरह से ले सकता था। जब बारात शामियाने में दाखिल हुई तो हर कोई नज़ारा करने दौड़कर बरामदे में आ गया। हम सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे और गले में गेंदे के फूलों के हार डाल रखे थे। लेखा बरामदे में नंगे पांव खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने हार गले से उतारकर हाथ में पकड़ लिया। इस पर वो हंसने लगी और मैंने घबराकर अपना हार साजी के गले में डाल दिया। शहबाला के जितने भी हार हूँ कम है। मैं लेखा से बहुत पहले का वाकिफ़ हूँ। जब वो 8वीं में थी, 9वीं में हुई, 10वीं पास कर ली, और जब वो कॉलेज में दाखिल होने के लिए रोती रही, वो दुल्हनों की सहेली थी। मैं कई छुट्टियों में खाला के यहाँ आया करता था, यहीं से उससे जानने लगा था। उसका कद लंबा था, रंग सांवला, नाक बहुत सतवा और नीमबाज लंबी लंबी पलकें बंद होती, छुई मुई की तरह, इतनी प्यारी कि छूने को जी जाता। लाल कला दहली के अजायब घर में ऐन उसकी शक्ल की एक अरब लड़की की तस्वीर है। पर दूर क्यों जाइए, आपने क्यों लेखा नहीं देखी? लंबे कद की खूबसूरत आंखों वाली, जिसके सर पर हमेशा सफ़ेद नैनाउन का मुनकशीन दुपट्टा हो। बस वही तो है लेखा, मेरी लेखा। उसे मैंने जब भी देखा नंगे पाँव देखा। जब वो चलती तो यूँ मालूम होता कि ज़मीन उसके नंगे पाँव चूम रही हो, और जब वो ज़मीन के सीने से चिमट जाते तो ऐसे लगता कि अब उठ नहीं सकेंगे। वो उन्हें ऐसे झटके से उठाती कि उसकी कमर में एक लचक सी पैदा हो जाती और वो नाचती हुई महसूस होती। उसकी चाल एक रक्स थी, एक नातमाम रक्स जो अभी शुरू ना हुआ हो, मगर जिसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही हो। सांचे में डले हुए पाँव बेकरार मछलियों की तरह इधर उधर तड़पते रहते और उन पर साटन की शलवार के भारी पांचे भंवर की तरह घूमा करते। मैं जाफरी में बैठा हुआ मुमताज़ को ख़त लिख रहा था। थानेदार साहब की वर्दी खोंटी पर लटक रही थी और उनकी पेटी का विसल अपने अड्डे से निकलकर मेरे सर पर मेहमारों के साहौल की तरह झूम रहा था। परले कोने में ग्रामोफोन पड़ा था। लाउड स्पीकर का मिस्त्री कभी अंदर आता और कभी बाहर भोंपू के पास जाता, फिर अंदर आकर पेचकश से पास पड़े हुए आले में कुछ तरमीम शुरू कर देता। भोंपू की आवाज़ ठीक ना थी। बेचारा मिस्त्री सुबह से पिंजरे के शेर की तरह इधर उधर हरकत कर रहा था। थक कर उसने पेचकस पतलून की जेब में डाल लिया और साउंड बॉक्स उठाकर फिर रिकॉर्ड की शुरू की लकीरों पर रख दिया। कोट से रुमाल साफ कर माथे पर फेरा और आराम कुर्सी में लेट गया। अचानक फिर उछला और बाहर भोंपू के पास जा खड़ा हुआ। इस तरह के 150-200 फेरे मार चुका था। मील भर की मुसाफत तय कर ली होगी। मैंने देखा वो भोंपू के पेच खोल या कस रहा था। मैं फिर ख़त लिखने लगा। विसल उसी हालत में झूम रहा था और ऐसा महसूस होता था कि अगर मैंने उससे देखा तो वो बजना शुरू कर देगा। बरामदे के आखिरी सिरे पर बच्चे खेल रहे थे। 2 कितारें थीं, ज़र्क बर्क लिबास थे और नन्हे नन्हे गीत। जब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते तो ऐसे मालूम होता जैसे रंग बिरंगी परियां जादू भरे गाने गाती झिलमिलाते हुए चिराग लिए फिरती हैं।
लड़कियों के बालों में रिबन बंधे थे और आंखों में सुरमा था। लड़कों की जेबों में खाने पीने की चीज़ें ठुसी हुई थीं और हाथों में नन्ही नन्ही छड़ियाँ थीं। वो हम ठंडी मौसम से आए हैं खेल रहे थे। जब उनका हंगामा बहुत बढ़ गया तो बैठक के दरवाजे से लेखा निकली, नन्हे पाँव, और मुझे जाफरी में बैठा हुआ देखकर खिसकती खिसकती जाफरी में आने लगी। मैंने ख़त लिखना बंद कर दिया। लम्हा भर के लिए उसे देखकर मैं बच्चों का तमाशा करने लगा। साजी की बारी थी। वो एक कदम आगे बढ़ा और झूम झूम कर गाने लगा, हम ठंडी मौसम से आए हैं। और फिर सारी किताब का जायज़ा लेकर उसने लेखा की छोटी बहन की कलाई पकड़ ली और कहा, हम इसको लेने आए हैं, और अपनी कितार की तरफ चला गया। मुखालफों ने शोर मचाया कि उसको नहीं, नाम लो। साजी परेशान होकर टक्कर टक्कर देखने लगी। उसके लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। बड़ी भारी कामयाबी 1 मिनट में जलील तरीन शिकस्त बन गई। वो घबरा सा गया। मैंने मेज़ पर पेंसिल बजाकर लेखा को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जो खिड़की से कमर लगाए उन्हें देखने में हद दर्जा मशगूल थी। वो मुड़ी और मुस्कुराने लगी। इसका नाम क्या है? मैंने पूछा। रूपा। वो फिर मुस्कुराई और झुककर अपनी पिंडली पर पड़ी हुई साटन की शलवार खुजाने लगी। मैं जाफरी की दीवार के पास आया, सुराख के पास मुंह करके ज़ोर से बोला, साजी साजी, हम रूपा को लेने आए हैं, हम रूपा। और फिर एकदम मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कह रहा हूँ, हम लेखा को लेने आए हैं। मुझे इस तरह देखकर वो एक दफ़ा फिर मुस्कुराई। बच्चे शोर मचाने लगे, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते, और एक गदर मच गया। मिस्त्री पेचकस लेकर घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ और आईसी कहता हुआ फिर एम्पलीफायर पर टूट पड़ा। लेखा ने कहरालू नज़रों से उसे देखा और वापस चली गई, नंगे पाँव, और मैं लटकते हुए विसल को तकने लगा। सामने देगें पक रही थीं, खाने पकाने की चीज़ें इधर उधर फैली हुई थीं। दिन की रोशनी में आग की चमक और लहसुन और प्याज की कच्ची पक्की खुशबू में कुछ इस तरह मिल गई थी कि सारी फ़िज़ा पुलाव की एक बड़ी सी रुकाबी मालूम होती थी। चावलों को दम दे रखा था। बावर्ची टीन की कुर्सी पर बैठा हुआ पिस्ते की हवाइयाँ काटने लगा। उसके पास एक लड़का किशमिश साफ़ कर रहा था। 2 और लड़के चीनी की रुकाबियाँ गर्म पानी में खंगाल रहे थे। वो ललचाई हुई नज़रों से किशमिश को देखते और हसरत से उस लड़के, जो हर 2 मिनट के बाद 10-15 दाने मुंह में डाल लेता और फिर इस फुर्ती से चबाता कि देखने वालों को पता न चल सके। उसने अपने सर को दोनों घुटनों में दबा रखा था। बावर्ची ने पिस्ते की थाली ज़मीन पर रख दी और टीन की कुर्सी की पुश्त पर पल पड़ा। वो ज़रा सी देर के लिए कसमसाई, चिरचिराई और फिर खामोश हो गई। इस दफ़ा मुस्लिम लीग जीतेगी। उसने फुंदना पकड़कर टोपी अपने सर से खींची और उसे उंगली पर घुमाने लगा। क्या नाम? लीग का सबसे बड़ा ऑफ़र आया था। हमारी तो सारी की सारी बरादरी का नाम इधर ही देगी। अपने बाप दादा तो सारी उम्र बिकते ही रहे हैं, पर हमसे तो वो नहीं हो सकता कि इतने रुतबे के आदमी की वो ना माने और दूर पुली लेकर भुगत जाएं इधर। और फिर वो टोपी को उंगली पर घुमाते घुमाते ऊँगने लगा। लड़के ने दोनों हाथों से किशमिश पर धावा बोल दिया। बावर्ची ने एकदम आंखें खोल ली। खाए जा साले, तेरे बाप की गांठ से थोड़ी जाता है। मुझे ये बता, जर्दे में तेरी माँ का भेजा डालूंगा। लड़के ने शर्मसार होकर सारा सर घुटनों में घसीट लिया और रकाबियाँ साफ़ करने वाले खिलखिलाकर हंसे और देर तक हंसते रहे। ज़हीर भैया जाफरी में आए। मुझे इस तरह बैठा देखकर हैरान रह गए। अरे तुम यहाँ हो? शादी में क्या रूखा चेहरा बना रखा है? उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा। यहाँ आए तो रोमांस लड़ाओ, ऐसे मौके हर रोज़ नहीं मिला करते। कुछ है प्रैक्टिस? मुझे उनकी ये बेवक्त आमद बुरी मालूम हुई। हम छम से जो आए तो क्या हो सोच रहे थे और वो धम से आ गए। प्रैक्टिस? मैंने दोहराया। थोड़ी सी है। एफए के ज़माने में गर्मियों की छुट्टियों में एक दफ़ा रोमांस लड़ाया था। शिद्दत का मलेरिया हुआ और फिर पायोरिया हो गया। फिर से इस हरकत की जुर्रत नहीं की, बल्कि ताब ही नहीं। वो हंसने लगे और सिगरेट तलब किया। बड़े अदब से 2 सिगरेट चीर कर उन्होंने तंबाकू को अपने पाइप में रखा, दिया सलाई दिखाई और चीयर यू कहकर चले गए। लेखा लेखा, वो मेरी जाफरी के आगे से फिसली जा रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर ठिठकी और जाफरी के करीब आ गई। इस वक्त उसके पैरों पर धूल की हल्की सी तह थी। उसने बंद होती हुई छुई मुई से मुझको देखा। वो जाने लगी तो मैं बेचैन हो गया। बस, मैं बोला और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा दिया। वो ठहर गई। ये स्लेटी पेंसिलें ना छुट सकीं आपसे, पता नहीं इनमें क्या मज़ा है। ये कहकर वो चल दी और फिर ना रुकी, ना ही मैंने रोका। मज़े से सिगरेट पिए गया। एक खिड़की आधी खुली थी, इसमें से मिली जुली आवाज़ें आ रही थीं। मैंने गर्दन उठाकर देखा। दोनों दुल्हनें गठड़ियाँ बनी पड़ी थीं। लेखा ज़मीन पर बैठी 2-3 लड़कियों से मिठार मिठार कर बातें कर रही थी।
चल, एक लड़की ने जवाब दिया। शायद लेखा ने कुछ कहा था। दफान हो मुर्दार, वो लड़की फिर चिल्लाई। इस दफ़ा भी मुझे लेखा के अल्फाज सुनाई ना दिए। अच्छा री, अब हमें दफान होने को कहती है। अब कि उसकी आवाज़ साफ सुनाई दी। ले भाई, नाराज़ हो गई हो, उस लड़की ने चमकार कर कहा। दफान के माने पता है क्या हैं? सुनो, इसका मतलब है खुदा करे तुम्हारा ब्याह जल्दी हो और तुम अपने खावंद के साथ फ़ौरन चली जाओ। वारी मेरी मटको, अपनी इस नई डिक्शनरी को कब शाया करोगी? लेखा ने पूछा, और वह हंसती उसके गले से चिमट गई। मैं आज तक दफान के गलत मानी ही समझता रहा था। अगले दिन बड़ी चहल पहल थी। लाउड स्पीकर कुछ ठीक हो गया था और दिन भर गला फाड़ता रहा। संजोग का गाना एक दिल वाला और एक दिल वाली, दोनों ये मिल मिल गाते हैं। इतनी दफ़ा बजाया गया कि आखिरी दफ़ा तो पता ही ना चल सका कि कौन क्या गाता है। बरामदे के साथ साथ और सुर्ख बजरी बिछा दी गई। शामियाने के चारों तरफ हरे पीले बल्बों वाला वेलकम लटका दिया गया। देगों के पास शागिर्द पेशा लोगों का इजाफा हो गया और कुर्सियां और सोफ़े मंगाए गए। रात को निकाह था। 2 दिल वाले और 2 दिलवालियाँ मिलाई जा रही थीं। मैं जाफरी के झरोकों में से सब कुछ देखा किया। रेशम में लिपटी हुई एक मानूस सी बिल्ली लड़की सबकी निगाहों का मरकज़ हुई थी। कंधे पर मिनी बैग लटक रहा था, कलाई पर मिनी सी घड़ी, नाक पर बगैर फ्रेम की चकोर शीशों वाली ऐनक, नाखून खून आलूद और सर के बाल किसी खौफजदा न्योले की दुम की तरह उठे हुए थे। कमरे से निकलकर बरामदे में आती, वहाँ से शामियाने और बरामदे की दरमियानी जगह ज़रा ठहरती और वापस अंदर चली जाती। फिर निकलती और कुछ इस अंदाज से कि पहली बार बाहर आ रही है, ज़रा रुक कर, लचक कर और मुँह बनाकर। जब वो 11वीं दफ़ा बरामदे में आई तो ज़हीर भैया जाफरी की ओट में से, इरशाद गर्म पानी के हमाम की तरफ से और मनीर बरामदे के परले कोने से जहाँ चिक लटक रही थी उसकी तरफ एकदम बढ़े। जब एक दूसरे के सामने आए तो तीनों शर्मा गए, ज़रा खांसे, पपोटे चिपकाए और आपस में हाथ मिलाकर हंसने लगे। वो उनके पास से गुजरकर बाहर अपनी जगह पर टहलने लगी। उनमें से किसी को भी उसके गुजरने का एहसास ना हुआ। सब ने यही जाहिर किया। दुल्हनों के कमरे में 2 बंगाली लड़कियां एकदम उठकर नाचने लगीं। खिड़की में से उनके घुंघरुओं की झनकार और टैगोर के गाने इक्का चूलो की आवाज़ जाफरी से बाहर निकली। एक आध खुली खिड़की से मौसीकी पुरानी छत की तरह टपक रही थी। रात छाई और शामियाने से किर्रात बुलंद हुई। दूध सी चांदनी, इस पर बेशुमार बल्ब, फूलों से लदे दोनों दुल्हा बरातियों के दरमियान गेंदे के ढेर दिखाई देते थे। काजी साहब सूरतों पर सूरतें पढ़ते चले जा रहे थे। अब मैं भी अपनी जाफरी में रहा। चांद और बल्बों की मिली जुली रोशनी जाफरी में मुनक्कस थी। ना बहुत अंधेरा था, ना चंद्याने वाला उजाला। ऐसा मालूम होता था जैसे चांद पर सुरमई चादर डालकर उसकी रोशनी से दीवारों पर सफ़ेदी कर दी गई हो। मैं बूटों और कोट समेत चारपाई पर दराज था। रज़ाई अर्जन ओढ़ रखी थी। मुंह और पाँव नंगे थे। अभी एक सिगरेट पिया था और अभी एक और पीने को जी चाहता था कि दरवाजे के पास एक साया झिलमिलाया। लेखा ही तो थी। मैंने आंखें बंद कर ली। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई, मुझे लेटा देखकर घबरा गई। फिर आगे बढ़ी, चारपाई के करीब आकर ज़रा झुकी और फिर सीधी खड़ी हो गई। 2 भाइयों का निकाह हो रहा है और जनाब यहाँ बूट सूट पहने सो रहे हैं। होले से खांसकर उसने मुंह में ये कहा और फिर तपाई की तरफ देखने लगी। लटकते हुए दुपट्टे को कंधे पर फेंक कर उसने सिगरेट की डिबिया और माचिस उठाई और एक सिगरेट निकाला और दिया सलाई जलाकर सिगरेट सुलगाने लगी। इस नन्ही सी लो में उसका चेहरा मैंने आँख की झुर्री में से देखा, जैसे अलहमरा के किसी बड़े दालान में एक बुझी हुई मोमबत्ती के आगे कोई लेखा अल्फलैला पढ़ रही हो। एक छोटा सा कश खींचकर उसने कुल्ले फैलाए और फिर फ़ौरन सांस छोड़ दिया। ज़रा सी देर मुझको देखा और फिर एक और कश लिया और ज़रा सा चुपकर सारा धुआं मेरे मुंह में धकेल दिया। शायद एक दफ़ा फिर ऐसे ही होता, मगर निकाह के छुआरे ऊपर शामियाने की छत से जा टकराए। मुबारकबाद की सदा बुलंद हुई। बाजा ज़ोर से बजा। सब उठ खड़े हुए। वो सटपटाई जलता हुआ सिगरेट तिपाई पर फेंक कर बरामदे में भाग गई। मैं उठ बैठा। इस धुंधली रोशनी में बजरी के गलीचे पर नंगे पाँव के 3 निशान बेतरतीब बोसों की तरह पड़े थे। मैंने तपाई पर से सुलगता हुआ सिगरेट उठाकर उसे देखा। काक वाली जगह गीली थी। उसे होंठों में दबाया, कश नहीं खींचा और फिर सिगरेट बुझा दिया और रुमाल में लपेटकर कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। फिर पासिंग शो के बाकी मांदा सिगरेट मार डिबिया मरोड़ तरोड़ कर जाफरी के मोखे में से
دور دور تک پھیلی ہوئی دودھیا چاندنی میں پھینک دیے۔